हेलो स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक है सर्विस इनोवेशन, फिजिकल एविडेंस एंड डिलीवरिंग सर्विस। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। Service innovation. Service innovation, as the term suggests, refers to a new and improved way of providing customer service. Service innovation कस्टमर सर्विस प्रोवाइड करने का एक नया तरीका है और इम्प्रूव्ड वे है. Currently, it involves employing digital and technological innovation to offer a satisfactory customer experiences. The main focus of any innovation should be on making a process easy and less time-consuming for customers. Customer service innovation can be an improvement in an existing service or an entirely new service. This should help the firm retain its existing customers and acquire new ones. While an extremely important idea for service-based companies, it applies to product-based companies too. Service innovation refers to any positive changes in the services sector that alter how services are provided or introduce new services. The main aim of innovative services is to simplify existing customer process to enhance ease and speed. Innovation can be a game changer for companies that help them to stay at the top of the chart and earn brand loyalty. जाहिर सी बात है, अगर कस्टमर एक प्रोडक्ट यूज़ कर रहा है तो वो उसमें इनोवेशन चाहता है. अगर कंपनी उस इनोवेशन सर्विस को प्रोवाइड करती है, कस्टमर तक पहुंचाती है, तो कस्टमर और ज़्यादा उस प्रोडक्ट को यूज़ करेगा और जो कंपनी है वो टॉप ऑफ द चार्ट पहुंच सकती है. ठीक है, इससे ब्रांड लॉयल्टी भी और अर्न कर सकती है कंपनी अपने खुद का. स्पेशली नाउ सर्विस शुड बी इनकॉर्पोरेट न्यू टेक्नोलॉजीज एंड द इंटरनेट टू स्टे अहेड और एटलीस्ट एट पार विथ कॉम्पिटिटर्स. तो न्यू टेक्नोलॉजीज़ की बहुत ज़रूरत है और नए नए टेक्नोलॉजीज़, डिजिटल एंड टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस का इन्वॉल्वमेंट सर्विस इनोवेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है ताकि वो अपने कॉम्पिटिटर्स को और अच्छी तरह से कम्पीट कर पाए. इसके कुछ टाइप्स होते हैं, जैसे कि डिग्री ऑफ चेंज, न्यूनेस, मीन ऑफ प्रोविजन. तो डिग्री ऑफ चेंज का मतलब होता है एन ऑर्गेनाइजेशन माइट हैव एग्जिस्टिंग सर्विस ऑफरिंग इन इट्स बास्केट. One, it introduces a new service. The extent to which it differs from its earlier service category can be either radical or incremental. An incremental innovation can be an extension of the earlier ones. It can be an addition to a few features. Radical innovation means an entirely new service that has no association with what the company previously offered. मतलब कहने का ये है कि प्रोडक्ट तो वही यूज़ कर रहा है कस्टमर, मगर उसमें हम कुछ ना कुछ छोटे मोटे फीचर्स ऐड करते जा रहे हैं सेम प्रोडक्ट में ताकि उससे कस्टमर और अट्रैक्ट हो. उसे ही हम डिग्री ऑफ चेंज कहते हैं. दूसरा टाइप है न्यूनेस. दिस इज प्रोबेबली एन ईजिली डाइजेस्टिबल क्लासिफिकेशन हाउ न्यू द प्रोडक्ट इज टू द फर्म और द मार्केट. Innovation in its most common sense means something new. The change can exist in the market, but the firm only adapted to it recently, or it can be the never before seen kind. The former isn't good as it makes customers feel left out and leads to the firm losing him, whereas the latter is good and कैन लीड टू हाइटेडनेस कस्टमर लॉयल्टी एंड एक्विजिशन. तो ज़्यादा से ज़्यादा नए प्रोडक्ट अगर एक कंपनी लॉन्च करते जाएगा, इनोवेशन अपना शो करते जाएगा कस्टमर को, तो कस्टमर कंपनी का क्रिएटिविटी देखते हुए उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट से और ज़्यादा अट्रैक्ट हो सकता है. लास्ट टाइप है मीन्स ऑफ प्रोविजन. प्रोविजन ऑफ एन ऑफरिंग रिफर्स टू द चैनल थ्रू विच it reaches the customers. Based on this, the service can be an E-innovative or a P-innovation. The former uses the internet as its medium. Means of provision in the sense प्रमोशन का क्या मोड हो सकता है. सोशल मीडिया के थ्रू कर सकते हैं और इलेक्ट्रॉनिक इनोवेशंस कर सकते हैं सर्विसेज और प्रोडक्ट से रिलेटेड. It is most apt in this digital era, and more services will take this route in this medium. Though a little outdated, it would sometime become inevitable. मतलब हमें प्रमोशन के जरिए को भी ध्यान में रखना है. और मीन्स ऑफ प्रोविजन टाइप ये बताता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा मोड अपनाएं कस्टमर तक पहुंचने के लिए. इसके बाद इसके कुछ बेनिफिट्स हैं. बेनिफिट्स में बोल रहा है द प्रॉफिट ऑफ एनी फर्म डिपेंड्स ऑन द लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन इट्स कस्टमर और क्लाइंट एक्सपीरियंस. Second है satisfaction of existing customers bring a new customer to the firm and ensure their loyalty. कंपनी का लॉयल्टी बरकरार रखने के लिए ज़रूरी है कि हम एग्जिस्टिंग कस्टमर को सेटिस्फाई कर सकें ताकि वो न्यू कस्टमर अपने आप से लेकर आ सके हमारे कंपनी के लिए. मोर कस्टमर इक्वेट टू हायर रेवेन्यू एंड हायर प्रॉफिट. जितने ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर होंगे उतना ज़्यादा
कंपनी का रेवेन्यू होगा और उससे उतना ही ज़्यादा कंपनी का प्रॉफिट होगा। इंक्रीज्ड कैश इनफ्लो इम्प्लाइज दैट बिजनेस कैन स्पेंड मोर ऑन रिसर्च एंड डेवलपमेंट, दस जनरेटिंग मोर इनोवेशंस। जाहिर सी बात है, इस ऐसा होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा कैश इनफ्लोज ही होंगे, आउटफ्लोज की संख्या कम हो जाएंगी और इनफ्लोज का मात्रा बढ़ जाएगा। इट कैन हेल्प अ बिजनेस सेट इटसेल्फ अपार्ट फ्रॉम इट्स कॉम्पिटिटर्स एंड बिकम द मार्केट लीडर। बिसाइड इनोवेशन कैन हेल्प रिड्यूस वेस्टेज एंड कॉस्ट विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन। अगर इनोवेशन कर रहे हैं तो ये बहुत अच्छी बात है कि उससे वेस्टेज कम होगा, कॉस्ट में ध्यान दिया जाएगा कोई भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। ऑल्सो एन इनोवेटिव एनवायरमेंट कीप्स द एम्प्लॉयज एक्टिव एंड स्टिमुलेटेड, thus प्रोवाइडिंग द थिंकिंग ग्राउंड फॉर मोर आइडियाज। ओके, तो अब हम हमारा लास्ट सेकेंड टॉपिक आज का कवर कर लेते हैं, जो कि है फिजिकल एविडेंस। फिजिकल एविडेंस एलिमेंट ऑफ द मार्केटिंग मिक्स refers to the physical environment experienced by the customer. This could include the physical design and layout of the premises, the layout of the company's website. तो कस्टमर जो है कोई भी प्रोडक्ट अगर यूज़ करता है तो जाहिर सी बात है वो उसके बारे में पता करता है। कहाँ से पता करेगा? वो देखेगा कि कंपनी का डिज़ाइन क्या है, लेआउट क्या है, प्रोडक्ट से रिलेटेड जानकारी लेगा, वेबसाइट चेक करेगा कंपनी का, प्रोडक्ट का। तो ये बहुत ज़रूरी है कि प्रोडक्ट के साथ साथ हम प्रोडक्ट का फिजिकल एविडेंस और नॉट ओनली ऑफ प्रोडक्ट बट हमारी कंपनी का भी फिजिकल एविडेंस अच्छे तरीके से कस्टमर तक पहुंचा सके, ताकि कस्टमर उस चीज़ को देखकर उसे अट्रैक्ट हो सके। डिज़ाइन एंड लेआउट्स आर इंपॉर्टेंट एज दे नीड टू मेक कस्टमर एक्सपीरियंस सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड। इफ़ कस्टमर्स स्ट्रगल टू फाइंड व्हाट दे वांट दे विल गो एल्सवेयर। अगर कस्टमर को हम सही चीज़ें नहीं शो करेंगे, ना कि सिर्फ प्रोडक्ट के बारे में बट अपनी कंपनी के भी बारे में, तो जाहिर सी बात है कस्टमर उस चीज़ को ढूंढने में स्ट्रगल फील करेगा और वो कहीं और उस चीज़ को ढूंढने निकल जाएगा। इट इज़ इंपॉर्टेंट दैट फिजिकल एविडेंस इज अपीलिंग टू कस्टमर्स। इट शुड ऑल्सो रिफ्लेक्ट हाउ द बिजनेस वांट्स टू बी सीन बाय इट्स कस्टमर्स। ठीक है, तो फिजिकल एविडेंस सिर्फ और सिर्फ कस्टमर के लिए एकदम सही तरीके से होना चाहिए, ताकि वो अच्छे से अट्रैक्ट हो सके उसे देखकर, उसे समझकर। फिजिकल एविडेंस के कुछ एलिमेंट्स होते हैं, जैसे कि लोकेशन डिज़ाइन, इक्विपमेंट यूज्ड, एयर क्वालिटी, लाइटिंग, नॉइज, म्यूजिक, एम्प्लॉय ड्रेस कोड, पार्किंग सिचुएशन, कलर्स, कटलरी, फर्नीचर, बिलिंग पेपर, बिजनेस कार्ड, कार्ड स्टॉक। ठीक है, तो ये थे इसके कुछ एलिमेंट जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है फिजिकल एविडेंस के लिए। हमारा आज का लास्ट का टॉपिक है डिलीवरिंग सर्विस। Delivery services means the fulfillment of delivery requests made by a delivery network company customer through a digital network, including the pickup of any goods and the delivery of the goods to a delivery network company customer by a delivery network driver. अब डिलीवरी सर्विस मतलब ये होता है कि हम किस तरह से, किस नेटवर्क से, किस मोड से हम कस्टमर तक अपना सर्विस डिलीवर कर रहे हैं। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। हम भले ही प्रोडक्ट बना लिए, हमारे कंपनी के सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, बट ये बहुत ज़रूरी है कि हम किस तरह से प्रोवाइड कर रहे हैं, किस तरह से डिलीवर कर रहे हैं, वो बहुत ज़रूरी है कस्टमर तक पहुंचना। और किस तरह से पहुंचेगा ये भी बहुत मायने रखता है। इसके कुछ मोड्स होते हैं। पहला मोड है डायरेक्ट हम हैंड टू हैंड सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। सेकेंड है सर्विस प्रोवाइडर एजेंट, लाइक ट्रैवल एजेंट, टूर पैकेजेस, मतलब ये ऐसे कोई जो सर्विस प्रोवाइडर एजेंट अपॉइंट कर दिया कंपनी और उसके हिसाब से कस्टमर तक सर्विस जा रहा है। या फ्रेंचाइजिंग खोल दी, अलग अलग ब्रांचेस खोल दिए, उसकी वजह से कस्टमर तक सर्विस पहुंच पा रहा है। या फिर इलेक्ट्रॉनिक चैनल थ्रू टेलीविज़न, टेलीफोन या फिर इंटरनेट। ठीक है, इसके थ्रू भी हम सर्विस डिलीवर कर सकते हैं। देयर आर सम स्ट्रैटेजीज रिलेटिंग टू सर्विस डिलीवरी दैट आर अंडरस्टैंड योर कस्टमर। सबसे पहला स्ट्रैटेजी है कि हमें अपने कस्टमर को समझना है। द फाउंडेशन ऑफ एक्सीलेंट सर्विस डिलीवरी बिगिंस विद अ डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ योर कस्टमर्स। टेक द टाइम टू गैदर इंसाइट्स इनटू देयर नीड्स, प्रेफरेंसेस एंड पेन पॉइंट्स। कंडक्ट सर्विस, engage in customer interviews and analyze data to create customer personas. This information will help you tailor your service to meet the specific demands of your target audience. सेकेंड स्ट्रैटेजी है सेट क्लियर सर्विस स्टैंडर्ड। जो भी हमारा सर्विस स्टैंडर्ड है उसे अच्छे से क्लियर रखें, स्टैंडर्ड फॉर्म में तैयार रखें, ताकि कस्टमर को कोई तकलीफ ना हो। कंसिस्टेंसी इज की व्हेन इट कम्स टू सर्विस डिलीवरी। इट इंश्योर्स दैट योर कस्टमर रिसीव द सेम लेवल ऑफ सर्विस एवरी टाइम they interact with your business. Establish clear service standard and guidelines. These standards should cover everything from response टाइम्स टू द क्वालिटी ऑफ योर प्रोडक्ट और सर्विस। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि स्टार्टिंग में बहुत अच्छा सर्विस शो कर रहे हैं, उसके बाद जैसे जैसे कस्टमर पुराना होता जा रहा है उसे हम सर्विस कम प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है फोस्टर अ कस्टमर सेंट्रिक कल्चर। सर्विस एक्सीलेंस शुड बी एम्बेडेड इन द कल्चर ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन। Encourage and reward employees for going above and beyond to meet customer needs.
ना कि सिर्फ कस्टमर की नीड को ध्यान में रखना है, बल्कि एम्प्लॉयज़ की भी नीड को ध्यान में रखना है। टाइम टू टाइम एम्प्लॉयज़ को रिवॉर्ड प्रोवाइड करना है ताकि वो कस्टमर के नीड को मीट कर सके। Create a workplace environment where employees feel empowered to solve customer problems and make decisions that benefit the customer. बहुत ही प्रेशर से एम्प्लॉयज़ को काम नहीं करवाना है। अगर प्रेशर रहेगा तो एम्प्लॉय ध्यान नहीं दे पाएंगे, इसलिए बहुत ही वर्क प्लेस इन्वायरमेंट को अच्छा रखना है ताकि कस्टमर के बेनिफिट्स में एम्प्लॉयज़ और काम कर सकें। एम्ब्रेस टेक्नोलॉजी, जाहिर सी बात है टेक्नोलॉजी की ज़रूरत होगी। इनोवेशन टेक्नोलॉजी में बहुत ज़रूरी है, तभी हमारा जो सर्विस या गुड्स है वो कस्टमर उससे अट्रैक्ट हो पाएगा। इन टुडेज डिजिटल एज, टेक्नोलॉजी प्लेज अ पाइवटल रोल इन एनहेंसिंग सर्विस डिलीवरी। इन्वेस्ट इन द राइट टूल्स एंड सिस्टम्स दैट स्ट्रीमलाइन कस्टमर इंटरेक्शन एंड मेक द प्रोसेस efficient. Consider implementing customer relationship management software, chatbots for instant support and online scheduling tools to simplify appointment bookings. ठीक है, ये था टेक्नोलॉजी से रिलेटेड बातें। नेक्स्ट है प्रायोरिटाइज ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। योर एम्प्लॉयज़ आर द फेस ऑफ योर बिजनेस। जो एम्प्लॉय है वो बिजनेस का एक फेस है। एम्प्लॉयज़ के बिना बिजनेस नहीं चल सकता। उनके स्किल्स और उनके नॉलेज की बिजनेस को बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, इसलिए टाइम टू टाइम उन्हें प्रॉपर ट्रेनिंग और प्रॉपर डेवलपमेंट की भी ज़रूरत होती है। इसलिए कंपनी का या बिजनेस का काम ये है कि वो अपने एम्प्लॉय का ध्यान रखे, स्पेशली फॉर द ट्रेनिंग और डेवलपमेंट में उनके साथ रहे। लास्ट पॉइंट है कंटिन्यूसली इवैल्यूएट एंड इम्प्रूव। सर्विस एक्सीलेंस इज एन ऑनगोइंग जर्नी, नॉट अ डेस्टिनेशन। रेगुलरली इवैल्यूएट योर सर्विस डिलीवरी प्रोसेस एंड गैदर फीडबैक फ्रॉम कस्टमर एंड एम्प्लॉयज़। यूज दिस फीडबैक टू आइडेंटिफाई एरियाज फॉर इम्प्रूवमेंट एंड मेक नेसेसरी एडजस्टमेंट। जाहिर सी बात है हमें इम्प्रूव करने के लिए फीडबैक की ज़रूरत है, ना कि सिर्फ कस्टमर की बल्कि एम्प्लॉयज़ की भी, ताकि बिजनेस और ज़्यादा ग्रो कर सके। यहाँ पर आज की क्लास खत्म होती है। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट होगा तो हम ऑनलाइन सेशन में आपकी डाउट क्लियर कर देंगे। थैंक यू।